Good morning, everyone. It's 9:30, right? Yes, it's 9:30. Okay. So, good morning. आज सब शुरुआत से अंत में ही मैं हूँ. There is no Bhumi today. And so let's start how we always start with a moment of silence. I request everyone to close their eyes and let's take a moment of silence. Let's get into that zone. You can slowly open your eyes. Okay. So, Kunal, can you go to the page number 141? Wait, 141. So you can just to reiterate, अभी हमारा last session में we Mm-hmm. did something else, right? But from where we left off in the book, so हम कर रहे हैं 3 keys to power. The first was love, second was gratitude, and the third is play. अब play का एक छोटा हिस्सा बाकी है, तो वो अभी हम complete कर लेंगे. एंड देन वी विल टेक समरी ऑफ द चैप्टर. सो अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट एक ही पेज का है बट बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट बाकी है. सो आई वुड लाइक कुणाल यू टू रीड फ्रॉम इन द फ्यूचर वी विल सी आफ्टर द कोट यू कैन स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम देयर. Everything is possible for the person who believes. Jesus. यस. In the future, we will see more and more discoveries about the power of our imagination. Already, scientists have discovered special mirror cells that activate the same areas in the brain when you imagine doing something as when you physically form the action. In other words, simply by your playing and imagining what you want to experience, your brain immediately responds as if it is real. If you are talking about something in the past or the future, you're imagining those things now. You're feeling those things now. You are on the frequency now. And that's what the law of attraction is receiving. When you are imagining your dream, the law of attraction is receiving it now. Remember, there is no time for the law of attraction. There is only this moment of now. If you experience a time delay in receiving what you want, it's only because of the time it takes you to get onto same feeling frequency that you desire is on. And to get on the same frequency as you desire, you have to feel the love of having your desire now. When you get yourself onto the same feeling frequency and stay there, what you desire appears. All you can possibly need or desire is already yours. Call your desires into the being by imagining and feeling your wish fulfilled. Neville Goddard. When you are really excited about anything that has happened and you feel amazing, capture the energy and imagine your dream. Quick flashes of imagining and feeling your dream are all you need to harness the power of your excited feelings for what you want. This is playing, this is fun, this is the joy of creating your life. थैंक यू कुणाल. यस. सो ये लास्ट पेज के लिए मैं 2 दिन से वेट कर रही हूँ तो अब फाइनली यहाँ पर है. ओके. तो कुणाल ने स्टार्ट किया. एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर द पर्सन हु बिलीव्स. आज हम बिलीव कर रहे हैं इसीलिए हम एक बुक रीडिंग में साथ में है ना. क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमें उसमें थोड़ा बिलीव है कि मे बी वी आर हमें इसमें से कुछ तो मिलेगा है ना. तो नाउ द ऑथर इज सेइंग इन फ्यूचर वी विल सी मोर डिस्कवरीज. सो बेसिकली वो बात कर रहे हैं मिरर सेल्स के बारे में, मिरर न्यूरॉन्स के बारे में, कि साइंस भी वो चीज बैक करती है इमेजिनेशन रिलेटेड. पर क्या होते हैं मिरर सेल्स और ये मिरर न्यूरॉन्स क्या होते हैं. सो ये मैंने भी थोड़ा सर्च किया कि व्हाट इज इट एग्जैक्टली. तो बहुत छोटी सी सिंपल सी चीज है. जब एक न्यूबॉर्न बेबी बॉर्न होता है तब अब बच्चे को ना स्माइल करना आता नहीं है.
तो वो अपने पेरेंट्स के या अपने आसपास के लोगों के चेहरे देखता है, उसको सिर्फ रोना ही आता है, उसको भी सुसु पॉटी लगी है, भूख लगी है, तो बच्चा सिर्फ रोता है। दैट्स द ओनली वे अ न्यू बॉर्न बेबी कैन कम्युनिकेट। तो बेबी है ना स्माइल करना सीखता है अपने पेरेंट्स को देख के, कि बच्चे को देख के स्माइल कर रहे हैं। तो वो मिरर न्यूरॉन्स है, कि वो देख रहा है कि अच्छा मुझे अपने मसल्स ऐसे करने हैं। फिर जब भी आप देखोगे कभी किधर आप बैठे हो, कोई यॉन कर रहा है, कोई भी हो यॉन, आपका कोई रिश्तेदार भी नहीं होगा, कोई भी रैंडम पर्सन यू सी इफ दे आर यॉनिंग, आप भी यॉन करते हो। मिरर न्यूरॉन्स, कि आप जो देखते हो वो आपकी बॉडी मिरर करती है, वो आपके सेल्स मिरर करते हैं। अभी आप कभी-कभी एक मूवी देखते हो जिसमें ऐसे दिखाया है एक सीन एकदम एक्शन सीक्वेंस, वो गिरने वाला है, तो 1 सेकंड के लिए आप भी डर जाते हो कि और मैं गिरने वाला हूँ। आप तो अपने मूवी थिएटर की सीट में आराम से बैठे हो। बट योर बॉडी, आपके जो सेल्स है वो उतना अंदर ज़ोन में जाते हैं कि वो मिरर करते हैं उसको, कि आपको वो सेम फील होता है। कोई मूवी सीन में किसी को रोते हुए देखते हैं तो भी हमें उनके इमोशंस फील होते हैं। आपको उसका दुःख फील होता है। भले हमारी मॉम अलाइव होगी तो भी उनकी मॉम गई है तो उसको देख के हमें दुःख होता है। मिरर न्यूरॉन्स। फॉर अ पॉजिटिव एग्जांपल, कभी-कभी आप देखोगे कुछ लोग बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँस रहे हैं और आपको जोक भी नहीं पता, पर उनकी हँसी सुन के आपको हँसी आ जाती है कि अरे कुछ तो फनी है। जिस तरह वो लोग हँसते हैं आपको भी हँसी आ जाती है। मिरर न्यूरॉन्स। तो वो क्या बोलता है कि ऑथर क्या बोलती है, सॉरी, कि simply by playing and imagining what you want to experience, your brain will immediately respond as it is real. मतलब कि अगर आप वो सेम चीज इमेजिन करोगे तो जब हम लोग आईज क्लोज करके भी इमेजिन करते हैं, इवन ड्रीम करते हैं, तो हमारे ब्रेन को नहीं पता है कि वो रियल है कि नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं पता वो रियल है कि नहीं है, आपको पता है कि वो इमेजिनेशन है कि रियल है। वो हमारा लॉजिक है, राइट? पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए वो रियल है। अगर आप इमेजिन कर रहे हो कि मैं एक लग्जूरियस कार में बैठी हूँ, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लगता है कि वो रियल है। तो इट विल ट्राई एवरीथिंग इन इट्स कैपेसिटी, एंड इन इट्स कैपेसिटी इज ह्यूज, कि इट विल मेक इट रियल फॉर यू। इट विल मेक यू फील दैट इट इज रियल। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग इन पास्ट और द फ्यूचर, यू आर इमेजिनिंग दोज थिंग्स नाउ एंड फीलिंग दोज थिंग्स नाउ। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कभी-कभी हम है ना अपने माइंड में कोई ऐसी कोई बात हो गई होती है, हम वो कॉन्वर्सेशन अपने माइंड में दोहराते हैं, वो बातें हम दोहराते हैं कि मैंने ऐसे बोला था, फिर मेरे को ये रिस्पॉन्स करना चाहिए था, जो भी है कहने का मतलब, आप एक मोमेंट में स्टक हो जाते हो, पुरानी कोई चीज़ वापस रिविज़िट करते हो। तो जब आप वो चीज़ रिविज़िट भी करते हो ना, तो उस वक़्त भी आप एग्ज़ैक्टली वही फ़ील करते हो जो आपने उस वक़्त किया था। गुस्सा हो सकता है, प्यार हो सकता है, दुःख हो सकता है, एनीथिंग इट कैन बी, राइट? सो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग इन पास्ट और द फ्यूचर, यू आर इमेजिनिंग दोज़ थिंग्स नाउ। इस मोमेंट में आप वो चीज़ इमेजिन कर रहे हो, भले पुरानी हो कि नई हो, बट आप वो अभी फ़ील कर रहे हो क्योंकि आप वो इमेजिन कर रहे हो, बिकॉज़ आप वो फ्रीक्वेंसी पे हो। सो, इट इज़ सेइंग कि व्हेन यू आर इमेजिनिंग योर ड्रीम, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ रिसीविंग इट नाउ। रिमेंबर, देयर इज़ नो टाइम फॉर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। The only moment for law of attraction is now. If you experience a time delay in what you want, is only because of the time it takes you to get on the same frequency your desire is on. मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि मैं कब से चीज कोई मांग रही हूं पर वो चीज अभी तक मुझे नहीं मिल रही, हमने एक माइंड में टाइम रखा है कि हमें वो टाइम डिले हो रहा है कि मुझे वो चीज अभी तक नहीं मिल रही, मुझे ये चीज चाहिए चाहिए चाहिए। क्यों नहीं मिल रही है? बिकॉज आप उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं हो जिस पे आपका डिजायर रियलिटी में है। अब वो फ्रीक्वेंसी पे कैसे पहुंचेंगे? द ओनली वे यू कैन रीच देयर इज लव। फील लव फॉर हैविंग दैट डिजायर नाउ, कि वो चीज आपको ऑलरेडी मिल गई है। हो सकता है दैट कैन बी अ हैप्पियर रिलेशनशिप, और इट कैन बी अ ऑब्जेक्ट, अ मटेरियल थिंग, या सक्सेस, मनी, एनीथिंग। जो चीज आपको चाहिए अगर आप फील करो कि मुझे मिल गई है, तो आप वो फ्रीक्वेंसी पे आ जाओगे। दिस इज हाउ वी आर गोना ट्रिक आवर माइंड इनटू प्लेइंग, एंड दिस इज हाउ वी विल ट्रिक आवर माइंड कि उसको हम रियल बनाएंगे। बहुत ब्यूटीफुल लाइन है जो गॉडर्ड ने बोली है। मुझे एक सॉन्ग की लाइन इससे याद आ गई। ऑल यू कैन पॉसिबली नीड और डिजायर इज ऑलरेडी योर्स। कॉल योर डिजायर्स इनटू बीइंग, उसको रियल कर दो बाय इमेजिनिंग एंड फीलिंग योर विश फुलफिल्ड, कि वो ऑलरेडी विश फुलफिल हो गई है। तो एक मूवी थी लव आजकल, उसका एक सॉन्ग था, आज दिन चढ़िया।
तो उसकी लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो जो गायक है वो बोलता है गॉड को, मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली। तो बेसिकली द होल पॉइंट इज जो मैं मांग रहा हूं वो ऑलरेडी मेरा है, राइट? आपको वो बिलीव करना है। इफ यू बिलीव इट इज ऑलरेडी योर्स, आप उसको रियल कर रहे हो, अपनी इमेजिनेशन से खींच के आ रहे हो और रियल कर रहे हो, और आप ऑलरेडी फील कर रहे हो कि मुझे वो मिल गया है। और एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपको और उस चीज को कैप्चर करनी है, हाउ यू कैन डू इट, कि जब आप कोई मोमेंट में बहुत खुश हो, समझो कोई अलग चीज कर रहे हो आप दोस्तों के साथ बैठे हो, कुछ हंसी मजाक चालू है, इन दैट मोमेंट आप हंस रहे हो और बहुत खुश हो, या फिर आप एक जगह घूमने गए हो, आपने कोई बहुत सुंदर दृश्य देखा और आपके मन में लग रहा है वाह क्या वाटरफॉल है, उस मोमेंट में जो आपने एक्साइटमेंट फील किया, खुशी फील की ना, वो एनर्जी को कैप्चर कर लो। वो बोलते हैं ना, एक मेंटल फोटो खींच के आपने वो चीज कैप्चर कर ली, और वो जो आपने फीलिंग कैप्चर की ना, देन उस फीलिंग के साथ इमेजिन करो जो आपका ड्रीम है। दैट्स द लास्ट पैराग्राफ। वो बोल रहे कि कैप्चर दैट एनर्जी एंड इमेजिन योर ड्रीम, क्विक फ्लैशेस ऑफ इमेजिनिंग एंड फीलिंग योर ड्रीम is all you need to harness the power of excited feelings for what you want। इसे बोलते हैं प्ले करना। द की जो हम सीख रहे थे, प्ले, दिस इज प्लेइंग, दिस इज फन, दिस इज द जॉय ऑफ क्रिएटिंग लाइफ। यस कुणाल, नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर एंड हम समराइज करेंगे। कुणाल, आई वुड लाइक यू, अभी हम पॉइंट्स ऑफ पावर में ना 3 सेक्शंस है, द की ऑफ लव, की ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड की ऑफ प्ले। आई वुड लाइक यू टू रीड ऑल द की ऑफ लव, देन यू टेक अ पॉज। Points of power, the key of love. To use love as the ultimate power in your हेलो। life, you वो प्रिंट प्रिंट है ना, बराबर नहीं दिखती है। एक सेकेंड ना बिना माफी। हाँ हाँ। अभी बताओ। मासी, अभी दिख रही है मासी? नहीं, ब्लर अभी। हाँ, थोड़ा अच्छा है। हाँ हाँ, बेस्ट। थैंक यू। Points of power, the key of love. To use love as the ultimate power in your life, you must love like you have never loved before. Fall in love with life. See only love, hear only love, speak only love, and feel love with all your heart. There is no limit, no ceiling to the amount of love you can feel, and it is all inside you. You are made of love. Tell the law of attraction what you love every day by singling out the things you love and feeling them. To change the way you feel or to lift good feelings higher, make a mental list of everything you love and adore. Your job is to love as much as possible every day. Make a conscientious effort to notice as many things around you that you love as much as you can each day. थैंक यू कुणाल, यू स्क्रॉल बैक अप। ओके, तो 3 कीज हमने देखी। सबसे पहले थी द की ऑफ लव, बिकॉज सी जो आगे के अभी हम चैप्टर्स करेंगे, हमने पहले सीखना है कि प्यार कैसे हम क्रिएट करें, राइट? जो वो भावना का हमने, भूमि का एग्जाम्पल हमने देखा था, कुकर वाला, राइट? उसके अंदर हम जितनी चीजें पॉजिटिव और जितनी चीजें प्यार की भरेंगे, तो जब सीटी बजेगी तो वही निकलेगा। तो ये पूरी समरी कहीं ना कहीं वही हमें एक चीज दोहराने की कोशिश कर रही है कि इतना प्यार फील करो कि जितना आपने कभी लाइफ में नहीं किया ऑलरेडी। यूज लव एज अल्टीमेट पावर इन योर लाइफ। यू मस्ट लव लाइक यू हैव नेवर लव्ड बिफोर। आपको लगता है मैंने कभी प्यार किया है, तो अभी उसको भी मल्टीप्लाई करो, उससे भी कहीं ज्यादा अपने लाइफ के साथ प्यार में आ जाओ। कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिना मासी, तो आप इमेजिन करो कि वाओ मैं हूं, कि मैं शिल्पा हूं, वाओ आई लव बीइंग शिल्पा। ऐसा कि मतलब आप फील करो मैं दुनिया में सबसे लकी हूं कि मुझे ये जीवन मिला है, कि मैं इस शरीर में हूं, इस रिश्ते में हूं, इस घर में हूं, मैं कितनी लकी हूं। ऐसा मतलब प्यार ऐसा करो कि
कभी लाइफ में नहीं किया हो, शिद्दत वाला प्यार, राइट? दैट इज वन. देन सी ओनली लव, hear only love, speak only love, feel love with all your heart. जितना हो सके अपने आसपास भी आप वही देखो, वही सुनो, वही करो जो सिर्फ प्यार आपको, आपके अंदर प्यार लाए. जब मैं प्रेग्नेंट थी तभी आई रिमेम्बर कोविड का लॉकडाउन था, 2020 की बात है. एंड यू नो बॉडी ही अपने आप नेगेटिव न्यूज सुनना नहीं चाहती थी, फील नहीं करना चाहती थी. तो मेरे पास है ना मोबाइल में वो ऐप होता था, इन शॉर्ट्स न्यूज का ऐप. तो अभी न्यूज तो पॉजिटिव भी आती है, नेगेटिव भी आती है, वो हमारे हाथ में है नहीं. जैसे व्हाट्सएप का मैसेज आता है तो टिंग फोन बजता है, ऊपर हमको मैसेज दिखता है. तो चाहो नहीं चाहो मेरा मोबाइल में टिंग बजता था और न्यूज आती थी. तो पता चलता था कि चलो बाहर दुनिया में क्या हो रहा है. बट कितनी चीजें उसमें नेगेटिव होती है. वो दिन है, इस बात को अभी ऑलमोस्ट 5.5 साल हो गए, मैंने वो ऐप पे डिलीट कर दिया. मुझे न्यूज़ पढ़नी ही नहीं है. अगर मैं पढ़ूंगी तो मैं न्यूज़पेपर से पढ़ूंगी अपनी चॉइस से, कि चलो मेरे को स्टॉक मार्केट पढ़ना है या जो भी. कहने का मतलब कि जो चीज़ आपको नेगेटिविटी देती है, जिस चीज़ से आपको प्यार नहीं फील होता है, निकाल दो अपनी लाइफ से, बिल्कुल बिना गिल्ट के निकाल दो. एंड कोशिश करो एवरीथिंग यू सी, हेयर, स्पीक एंड फील इज जस्ट लव. There is no limit, no ceiling to the amount of love you can feel, and it is all inside you. You are made of love, right? कभी कभी हम सोचते हैं कि यार भगवान ने इतना मिराक्युलस बनाया है, आपके सामने एक छोटी सी चींटी जा रही है, आपको नहीं पता उसकी भाषा क्या है, पर एटलीस्ट आपको पता है कि आज मैं, ये जीवन मुझे इंसान का मिला है, आज मैं बोल सकता हूँ मुझे क्या चाहिए, मैं सोच सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मैं दूसरों को बता सकता हूँ. तो वो बोल रहे कि अगर आपको लगता है कि आपने, देर इज, कि इतना मैंने प्यार फील किया, अब इससे ज्यादा प्यार नहीं है, नहीं, आप गलत हो, उससे भी कहीं ज्यादा है. देर इज नो लिमिट, सीलिंग ही नहीं है प्यार की. एंड वो जितना भी है ना, सब हमारे अंदर है. इट्स ऑल बिकॉज वी आर मेड ऑफ लव. इमेजिन जब एक बच्चा बॉर्न होता है, the birth process, it is so miraculous. Every time I see a newborn baby, मैं सोचती हूँ कुदरत ने, भगवान ने कैसे बनाया है. क्या डीएनए होता है, इंसान का बच्चे में से इंसान निकलता है, डियर के बच्चा डियर निकलता है, मतलब क्या साइंस है, राइट? कि कैसे उसको पता है, उसके अंदर बॉडी में वो डीएनए है, उसके पास वो स्क्रिप्ट है कि ठीक है इसके ऐसे लंग्स होंगे, इसका ऐसा स्टमक होगा, इसका ऐसा लिवर होगा. द साइंस इज सो मैजिकल, और वो बनाया भी भगवान ने है, राइट? देर इज मैजिक एवरीवेयर एंड वी ऑल आर मेड ऑफ लव. ईच ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स, insects, everyone, we are made of love. Tell the law of attraction what you love every day by singling out the things you love and feeling them. जो मैंने बोला कि जो हम लोग की ऑफ ग्रैटिट्यूड में है, जो हम लोग इमेजिनेशन करते हैं, हाउ टू प्ले में, हाउ टू ग्रैटिट्यूड में, इसमें हमें गॉड को लिख के बताना है, यूनिवर्स को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमें पॉइंट आउट करके बताना है कि मुझे ये चीज चाहिए. यूनिवर्स के पास इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी चीजें हैं, है ना? सो यू हैव टू पॉइंट आउट एंड से थिंग्स यू लव. तो यू हैव टू हाईलाइट दैट. हम बुक में कैसे अंडरलाइन करते हैं, तो वो हमें करना है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बताए एक एक चीज जो हमें, जिससे प्यार है. और वो सिर्फ बतानी नहीं है, फीलिंग के साथ बतानी है. ऐसे नहीं बोलना है हाँ मुझे गाड़ी चाहिए, हाँ मुझे घर चाहिए, हाँ मुझे अच्छा रिश्ता चाहिए. नहीं, प्यार से, राइट? वो बेचारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको सुनने को तैयार बैठा है, थोड़ा प्यार से, राइट? To change the way you feel or to lift good feelings higher, मेक अ मेंटल लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू लव एंड अडोर. जो मैंने कल लास्ट में एक बात बोली थी कि अभी हमने, जब से ये ग्रैटिट्यूड का चैप्टर स्टार्ट किया है, तो पुराने दिन याद आ रहे हैं कि जब मैं ग्रैटिट्यूड किया करती थी और ऑलरेडी वो अच्छा फील लग रहा है कि अरे वाह, ग्रैटिट्यूड के जोन में आ गए हैं. तो अब शावर में नहाते हैं तो भी लगता है थैंक यू गॉड, बाहर इतनी ठंडी और मैं पानी गर्म कर सकती हूँ, गर्म पानी आ रहा है एक स्विच से, छोटी छोटी चीज में ग्रैटिट्यूड आ रही है. तो वो बोल रहे मेक अ मेंटल लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू लव एंड अडोर. कभी कभी लगता है लाइफ में प्यार नहीं आ रहा है, तो उस जोन में कैसे आए, मेंटली आप वो लिस्ट बनाओ. जो चीजें ऑलरेडी पसंद है, जिससे ऑलरेडी प्यार है, उसको, उसकी मेंटल लिस्ट बनाओ. और वो लिस्ट आप कभी भी बना सकते हो, उसके लिए आपको अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है. एनी टाइम यू कैन डू दैट. योर जॉब इज टू लव
एज मच एज पॉसिबल एवरी डे। इवन ग्रैटिट्यूड के लिए वो बोलते हैं कि जब जब मौका मिलता है, जब आपको ऐसे बोलते हैं ना, जब आप जागृत हो तब सवेरा है, जब याद आता है उस वक्त बना दो। डोंट थिंक वेयर आई एम, व्हाट आई एम डूइंग, जस्ट स्टार्ट मेकिंग अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू लव। जस्ट स्टार्ट गिविंग लव एज मच एज यू कैन ईच डे। तो वो कुकर प्यार से भर जाएगा। Make a conscientious effort to notice as many things around you that you love, and as much as you can each day, right? कॉन्सियस एफर्ट मतलब हमें विलिंगली वो कोशिश करनी है। रिमेंबर दैट डूम स्क्रोलिंग वाला मैंने बताया था, जब हम मोबाइल में स्क्रोल करते हैं तो मुझे याद आता है, अरे नहीं मैं डूम स्क्रोलिंग कर रही हूँ, फोन उठा के उसी वक्त फेंक दिया, तो हम अलर्ट हो गए, राइट? वैसे ही तो जब जब आपको कोशिश करके, ऐसे नहीं कि ठीक है अब याद आया तो कर दिया, कोशिश करके याद करो। जब आपको फ्री टाइम मिलता है, थोड़ा भी टाइम मिलता है, कि फॉर एग्जाम्पल जब तक आपका मोबाइल में इंटरनेट लोड हो रहा है, जब तक कभी कभी आप अपना रिचार्ज भर रहे हो, टाइम लग रहा है, गूगल पे कर रहे हो, वो 10 सेकेंड भी काफी है टू थिंक ऑफ वन थिंग यू लव। कि अरे वाह, आज मैं गूगल पे कर पा रही हूँ, थैंक यू गॉड फॉर इंटरनेट, थैंक यू फॉर मनी इन माई बैंक। छोटी छोटी चीजें, एकदम छोटी छोटी चीजें, जितना हम करते जाएंगे ना, ये हम हमारे ब्रेन को प्रोग्राम कर रहे हैं। तो अगर आज हम एआई देखते हैं, रोबोट देखते हैं, वो क्या है? रोबोट और एआई जो भी आप बोलो, वो चीजों को ना एक नॉलेज बेस दिया जाता है, कि एक है ना, समझो डेटा बेस दिया जाता है, वो सारा उसमें से स्टडी करता है और उसके ऊपर एक डिसीजन बनाता है। जो उसके पास नॉलेज है वो उसमें से ही डिसीजन बनाएगा। हम एग्जैक्टली वैसे हैं। एआई को उन्होंने ह्यूमन ब्रेन को कॉपी करने की कोशिश की है। एक एग्जांपल देती हूँ कि आप रोज एक रास्ते से जाते हो, एक खड्डा आता है, तो पहली बार समझो आप खड्डे में गिरे, अब आपको पता चल गया वहां पे खड्डा है, तो आप उसको देख के थोड़ा ध्यान से साइड से जाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी नॉलेज में आ गया, यहाँ पे खड्डा है। अभी आपका नया डिसीजन क्या है? राइट साइड से जाओ या लेफ्ट साइड से जाओ। एक रोबोट भी ऐसे ही चलता है। कभी आप वो एयरपोर्ट पे क्लीनिंग वाला रोबोट देखोगे, तो उसकी ना ऐसे लाइट आती है, तो उसके सेंसर्स में देखता है कि अरे यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, इधर से खिसक जाओ। एग्जैक्टली ह्यूमंस वैसे बने हुए हैं। तो हमको वो हमारी नॉलेज से कोशिश करनी है, हर बार कोशिश करनी है कि हम जितना हो सके कॉन्शियसली लव दे। तो जो हमारा ब्रेन है ना, वो उसी चीज में अपने आप उसने वो चीज सीख ली। ऐसा भी होगा कि आप अभी कोशिश भी नहीं कर रहे और ऑटोमेटिकली आपके मुंह से जो निकल रहा है, प्यार ही निकल रहा है। आप चार लोगों के साथ बैठे हो, आप सिर्फ पॉजिटिव ही चीजें बातें कर रहे हो, और वो लोग भी फिर वही बात कर रहे हैं, राइट? योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। तो वही हमें पहुंचना है। यस कुणाल, थैंक यू। यू कैन गो टू द की ऑफ ग्रैट। ओ सॉरी, 1 सेकेंड, बिकॉज ये समरी भावना को लेनी थी, तो आई वुड लाइक टू ऐड फ्यू पॉइंट्स जो भावना ने भी निकाल के रखी थी, क्योंकि वो ये यूट्यूब वीडियो देखेगी उसका, फिर वो मुझे डांटे नहीं। तो गोइंग टू दैट, तो भावना ने जो पॉइंट आउट किया है समरी में, भूमि ने, इज लव इज बियॉन्ड गुड एंड बैड। जो उन्होंने कल बात बताई थी, वही बात, कि अगर आप देखोगे वो चार्ट में, कि लव एकदम बीच में है, ना इस साइड है ना उस साइड है। लव के लिए ना राइट है ना रॉन्ग है ना शुड है, इट इज बियॉन्ड शुड। लव इज द विलिंगनेस टू एम्ब्रेस दिस मोमेंट एग्जैक्टली इट इज। कहने का मतलब, जो ऑथर भी बोलने की कोशिश करिए, कि लव अभी में है, नाव में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में नहीं, फ्यूचर में नहीं, इस मोमेंट में लव है। तो इस मोमेंट में आपको फील करना है। एक और चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगी, कि जो मैंने बोला था कि आई वुड लव टू ऐड एंड आई फॉरगॉट, कि लव इज ऑलरेडी देयर एवरीवेयर, इवन इनसाइड अस। हमें अपने आप को आज्ञा देनी है प्यार के लिए, हमें अपने आप को अलाउ करना है प्यार फील करने के लिए। अगर हमारा प्यार, हमारा काइंडनेस सिर्फ दूसरों के लिए है, तो उसका इतना कुछ मतलब नहीं है, एक दिन वो कम होगा ही। अगर आपका प्यार, आपकी करुणा, आपका काइंडनेस आपके प्रति पहले नहीं है, तो वो उस प्यार का फिर मतलब नहीं है। हम सबके साथ अच्छा चले, सबके साथ प्यार से चले, सबको प्यार दे, पर अपने आप को ही नहीं दे, तो क्या मतलब उस प्यार का? तो वी हैव टू अलाउ आर सेल्व्स टू लव आर सेल्व्स। खुद को प्यार करो, तो फिर अपने आप बाकी चीजें तो सॉर्ट आउट हो जाएगी। यस कुणाल, सॉरी, नाउ यू कैन गो अहेड। थैंक यू ब्रो।
The key of gratitude. Every time you feel grateful, you are giving love. Be grateful for everything you have received in your life, which is past. Be grateful for everything you are receiving in your life, which is your present. Be grateful for what you want in your life, as though you have received it, future tense. Your gratitude will multiply everything in your life. Gratitude is the bridge from negative feelings to harnessing the force of love. To use the power of gratitude, practice it. When anything good happens to you in your day, give thanks. It doesn't matter how small it is, say thank you. The more you feel gratitude, the more love you give. And the more love you give, the more you receive. Every spare second is an opportunity to be grateful and multiply the things you love. Thank you, Kunal. So, gratitude. I think before we start gratitude, जैसे हमने उस दिन किया था, एक चीज जो सुबह से लेके अभी 10 बजने को आए हैं, सुबह से ऐसी एक चीज तो हुई होगी जिसके लिए हम थैंक्स कर सकते हैं. तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू शेयर एटलीस्ट वन थिंग विच यू आर ग्रेटफुल फॉर सिंस मॉर्निंग टुडे. हाय। मैं कहना चाहूंगी कि कल कल से नहीं, परसों से यहाँ बारिश बहुत है। कल नहीं थी, सॉरी, कल पूरा दिन थी और आज सुबह से थोड़ी सी कम है। तो आई थैंक्स टू गॉड के भाई आज बारिश कम है और एग्जाम का पीरियड चालू है, तो मेरी बेटी आराम से स्कूल जा पाई। थैंक यू। बेना, um, कुणाल, या गो ahead. मेरे को एक चीज बेना मसी की याद आ गई। इसमें एक लाइन थी कि नोट डाउन द या लिस्ट ऑफ थिंग्स यू कैन पुट फॉर ग्रैटिट्यूड। तो बेना मासी ने आई थिंक सो मेंशन किया था, कुछ चीजें उन्होंने लिखी थी। सो सडनली मुझे वो याद आ गया कि हाउ वी हैव अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल ओवर हियर, कि कैसे हम कोई चीज को ऐसे ब्यूटिफुली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड ऑल दिस बुक में जो हम सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम हमारे स्मॉल एक्शंस में हमें पता रहता है कि वो प्रैक्टिस हो रही है। एंड दैट्स हाउ आई थिंक सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर टू इवन एक्नॉलेज दिस पार्ट कि uh, हमें हमें पता रहता है। बहुत बार हम सोचते हैं चीजें कि हमारी हो जाती है। मेरे पास्ट लाइफ में भी मतलब काफी काफी टाइम इन माय लाइफ आई हैव एक्सपीरियंस दिस, कि हमने जो चीज जैसे एकदम दिल से मांगी हो, लाइक ऐसा नहीं कि डर से मांगी हो। देयर इज बहुत डिफरेंस लगता है। अगर हम अपने ही लाइफ में अगर हम पीछे जाके देख सके कि हमने बहुत सारी चीजें जो डर से मांगी है और एक सच्ची शिद्दत से जो मांगी है, उसका डिफरेंस वी नो फ्रॉम आवर हार्ट। सो there is a difference for praying with gratefulness in your heart and with all the love in your heart, and there is a difference between praying with all the fear कि बस मांग तो दोनों ही रहे हैं हम, but at the same time the beauty is what we feel from inside is something which makes the real change in our life. So yeah. थैंक यू कुणाल. इट इज डेफिनेटली ट्रू. वट अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो वही पढ़ रहे हैं कि जो भी चीज हम मांग रहे हैं हमें चाहिए वो प्यार से आए. यस बेना मसी. मेरे को कल मैंने जो मेरा मशीन का काम है कल मैंने नहीं किया और मेरे को थोड़ा फ्री टाइम चाहिए था, तो मैं फ्री टाइम में मैं क्या करूं वो सोच रही थी करके। तो मैं जो 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 मेरे को याद आया ग्रेटिट्यूड का, अरे हाँ ये मैंने किया ही नहीं। और मैं कितना दिन से टू डू लिस्ट तो बनाती है
और उसमें मैं एक शेयर भी किया था करके कि मैंने लिखा है कि उसका मैसेज आएगा, तो मैसेज आया। और फिर अभी मैंने उसके बाद लिखा है कि नहीं, अभी उसका वीडियो कॉल आएगा। तो कल रात को 11:30 बजे उसका वीडियो कॉल आया। और इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। और वो मेरे घर पे अभी वो मैंने सब लिखा है, मगर जो मैं टू डू लिस्ट में लिखी, और जो कल मैंने ग्रेटिट्यूड किया उसका मतलब मिस्टर का और मम्मी का, पापा का, सास ससुर का, बच्चे लोग का, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड। मैं बोला अरे बाप रे, मेरे पास तो कितना टाइम है आज। और बहुत मतलब जो मन में आया ना, वो कभी कभी ऐसा लगा कि ये तो मैंने कभी किया ही नहीं। और वो जब ये याद आता गया ना, तो इतनी खुशी हुई। और वो खुशी से मेरा ये ड्रीम कंप्लीट हुआ करके कि उसका वीडियो कॉल आया। और थोड़ी देर बाद की, मगर मैंने जो बोला था करके वीडियो कॉल आएगा, तो वो मेरा एक ड्रीम कंप्लीट हुआ। और एक सेकंड ड्रीम था करके कि कोई मेरा ये सेशन में ही, मतलब ये सेशन में, कोई भी सेशन में मेरा नाम ले। तो आज आपने मेरा नाम लिया, तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि हाँ, ये तो मेरा ड्रीम था। मैं हर एक टाइम होते अरे वाह, किस भी हिसाब से मेरा नाम ले। तो आपने शिल्पा बोला तो मेरे को बहुत खुशी हुई। तो वो भी मेरा ड्रीम कंप्लीट हुआ। मैं हर टाइम बोलती है कि बेना तो बुलाते हैं, मगर कोई मेरा शिल्पा नाम ले। तो वो एक दो, आज आज के दिन मेरा दो ड्रीम कंप्लीट हुआ। तो उसके लिए मैं आज सेलिब्रेट भी करेगी और बहुत खुश हूँ। थैंक यू। चीयर्स बेना मासी, सेलिब्रेशन में हमें भी बुलाओ। पक्का पक्का। तो एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जैसे अभी मैंने कल बोला कि कि हमें लिखना चाहिए ग्रैटिट्यूड। बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, हैंड टू गॉड, मैंने लिखा हुआ है ग्रैटिट्यूड, मेरी जर्नल है। बट अभी तक मैंने ये बोलने के बावजूद, बोलते ना वी शुड प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच। मेरे घर पे गेस्ट है, मेरी सिस्टर इन लॉ, बच्चे, और दूसरी सिस्टर इन लॉ, बच्चे, सब लोग आए हुए हैं। तो घर एकदम, आप इमेजिन करो, सबके हर एक इंसान के दो दो बच्चे हैं, तो घर पूरा भरा हुआ है। तो उतना टाइम नहीं निकल पाई कि मैं भी बैठ के लिखूं, ग्रैटिट्यूड करूं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि बेना मासी हमारे इस ग्रुप में, इस सर्कल में है, कि एटलीस्ट कोई एक इंसान है, बोलते ना कलेक्टिव एनर्जी, जो लिख रहा है। तो मुझे खुशी है somebody इज प्रैक्टिसिंग, इवन दो आई एम प्रीचिंग, आई डोंट माइंड, कि जो हम लिखते हैं उसमें बहुत पावर है, बहुत बहुत पावर है। और जैसे आपने किया कि देखो, मेरे को फ्री टाइम मिला तो मैं लिखते गए, लिखते गए, और जब हम चालू करते हैं ना, तो और चार चीजें अपने आप मिल जाती है। आप पॉजिटिव लिखो या नेगेटिव लिखो, जो भी चीज, जैसे भावना ने भूमि ने एग्जांपल दिया था शुड वाला, तो जब मैं शुड भी लिखने गई तो और दो चीज मुझे लिखते लिखते अपने आप आ गई कि हाँ, ये भी मेरा एक शुड है, ये भी एक मेरा शुड है। तो जो भी हम जिस फ्लो में जाएंगे, उस फ्लो में हम बहते जाएंगे। तो इससे अच्छा कॉन्शियसली ट्राई करो कि आप प्यार का फ्लो पकड़ो, आप पॉजिटिव फ्लो पकड़ो। थैंक यू बेना मासी। एंड वन मोर, आई थिंक परिधि इज ऑल्सो देयर, राइट? यस, परिधि, वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। आज हम ही गिने चुने लोग हैं, तो व्हाई नॉट इफ यू कैन ऑल्सो शेयर। Actually, I have not been writing, but I'm getting inspired by Shilpa's sharing that I should also write, and how you're saying about writing has power. Uh, that's true. Written word has power. So I'm just thinking I'm not using it to the fullest potential I can. Like fully harness this. But no, but I think yeah. Uh, I mean, it's just like small, small things about, like subconsciously we kind of know, अरे हाँ, हम दूसरे को यौन देख के यौन करते हैं. But we never apply कि मतलब हम खुशी भी तो ऐसे मल्टीप्लाई कितनी कर सकते हैं. हर चीज, मतलब हर चीज अगर तुम अपना, मतलब अपना, अगर मैं ये ऐसे स्विच कर लूं दिमाग, कि भाई हर चीज ही बस एक ही बटन दब रहा है लव का. मतलब हर चीज का, मतलब इट कैन बी क्रेजी. Matlab, your actually each cell can be filled with love. So that's what, yeah, I'm feeling today. Absolutely. Great share. Loved it. Exactly what we are learning right now. कि every cell, आपके शरीर का एक एक inch of your body should be filled with love. So one more exercise I wanted to do, which we will try in the end, because अभी हमने sharings ली है. So thank you Paridhi. Thank you everyone for sharing. So continuing to gratitude, right?
एवरी टाइम यू फील ग्रेटफुल यू आर गिविंग लव, जो अभी हम दे रहे थे, इवन विद द जूम के हार्ट इमोटिकॉन्स, वी आर गिविंग लव, वी आर गिविंग लव टू ईच अदर्स शेयरिंग्स। हम एक दूसरे के लिए वो स्पेस क्रिएट कर रहे हैं जहाँ हम सब एक एक चीज अपने लिए शेयर कर पा रहे हैं विद एन ओपन हार्ट। जब हम शेयर कर रहे हैं हमें ऑलरेडी अच्छा लग रहा है कि हमने कोई बात शेयर की, जो भी हमें पॉजिटिव भी फील हो रहा हो या इवन व्हेन वी आर फीलिंग लो, to have this space where we can, right, we are grateful for that. Every time you feel grateful you are giving love. Now this is a very important line. Kunal, can you scroll to the key of gratitude? Thank you. So this, be grateful for everything you have received in your life. ये बहुत ज़रूरी है। कभी कभी जो हमारे माइंड में जो चीज़ें, जो रील्स प्ले हो रही है वो पास्ट की होती है, और बहुत बार वो पॉजिटिव नहीं भी होती है, कि जो हमने कोई चीज़ गलत कर ली उस पर हम गिल्ट करते रहते हैं कि काश मैंने ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसी बोली होती, काश मैं पॉलिटिकली करेक्ट होती, काश मैं डिप्लोमेटिक होती, काश मैंने एक मिडिल पाथ चूज किया होता, काश मैंने इतना जोर से नहीं बोला होता। वट एवर, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि कभी कभी हम पुरानी, एक मैंने मे बी एक रिश्ता, आई लॉस्ट अ फ्रेंड और एनीथिंग इन द पास्ट, कि हमने कोई पुरानी चीज, हम कभी कभी है ना पुरानी चीजों को अपना हर्ट कैरी करते हैं, तो हम आज में ग्रेटफुल नहीं हो सकते और फ्यूचर में हम वो चीज नहीं पा सकते अगर हम हमारे पास्ट के साथ पीस नहीं बनाए। वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू हैव रिसीव्ड इन योर लाइफ इन पास्ट। पॉजिटिव चीजें, अच्छी मेमोरीज को तो ऑफ कोर्स हम ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं, राइट। थैंक यू मुझे ये मिला, थैंक यू मुझे वो मिला, ब्ला 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 ब्ला, वो आसानी से आता है। बट वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द क्लोज डोर्स ऑल्सो इन द पास्ट। देन वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी आर रिसीविंग नाउ, इवन दो हमें ऐसे लगता है कि कभी कभी इन दिस मोमेंट कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। नेक्स्ट जो है, ग्रैटिट्यूड इज अ ब्रिज। उसमें आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल कि हम एक नेगेटिव फीलिंग को भी पॉजिटिव वे में कैसे ले सकते हैं, बिकॉज चीजें तो होती है, सर्कमस्टेंसेस हमारे हाथ में नहीं है। सो वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग वी हैव रिसीव्ड इन पास्ट, पुरानी सब चीजों के लिए शुक्राना, अभी जो मिल रहा है उसके लिए शुक्राना, और जो मिलने वाला भी है उसके लिए भी वी हैव टू बी ग्रेटफुल। एवरीथिंग वी वॉन्ट इन लाइफ वी हैव टू थिंक दैट वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट, और उसके लिए हमें थैंक्स बोलना है, तो ही हमारे चीज में वो इजीली आ पाएगी। वी आर गिविंग इट अ पिक्चर, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वो फोटो दे रहे हैं कि मुझे ये चाहिए। मैंने आपको पहले वर्ड्स में बताया, अब मैं आपको एक पिक्चर दे रही हूँ, प्लीज मुझे ये चाहिए, एंड थैंक यू आपने मुझे वो दे दिया है, आई एम सो ग्रेटफुल। मांगा जो मेरा है, राइट। Your gratitude will multiply everything in your life. Like we said, gratitude is a multiplier. जो भी चीज को आप शुक्राना दोगे वो बहुत अनगिनत क्वांटिटी में मल्टीप्लाई होगी। दैट इज द ब्यूटी एंड पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। Gratitude is the bridge from negative feelings to harnessing the force of love, right? सो आई पेन डाउन एग्जाम्पल कि इसका क्या मतलब है। मैंने ये ऑफकोर्स चैट जीपीटी से पूछा, बट मुझे बहुत अच्छा एग्जाम्पल आया कि फॉर एग्जाम्पल ग्रैटिट्यूड इज अ ब्रिज। जो हमने वो इमेज देखी थी जो हमको फियर से ट्रस्ट पे लेके जाती है, डर से हमें विश्वास पे लेके जाती है। अगर आपको कभी एक नेगेटिव फीलिंग आती है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इफ एवरीथिंग गोज रॉन्ग, अभी हमारा दिन नेक्स्ट डे आ रहा है, कुछ चीजें आ रही है जो आपके लाइंड अप है, आपके प्लान्ड है, अगर आपको एक फीलिंग आती है व्हाट इफ एवरीथिंग गोज रॉन्ग, तो व्हाट यू कैन गिव ग्रैटिट्यूड, राइट। आई एम ग्रेटफुल फॉर द चैलेंजेस आई हैव ऑलरेडी सर्वाइव्ड। मतलब आपके पुराने भी चीजें, पास्ट में भी ऐसे कुछ ना कुछ हुआ होगा जिसमें कोई भी चैलेंजेस आए होगी, बट यू हैव सर्वाइव दोज, राइट। यू आर अ सर्वाइवर। कितनी आपने पुराने भी दुख, पुराने भी कठिनाइयां आपने पार की है। रिमेंबर कि यू हैव द केपेबिलिटी कि जो भी आएगा लाइफ में मैं देख लूंगी, मेरे में वो है। मैंने ऑलरेडी इतना कुछ किया है लाइफ में, आई एम अ सर्वाइवर, आई हैव ओवरकम चैलेंजेस इन पास्ट। सो कल भी जो भी आएगा देख लेंगे, अच्छे से ही जाएगा। मैं कल भूमि और मैं कॉल पे थे फॉर टुडेज सेशन। टुडे इज द फर्स्ट सेशन सिंस वी हैव स्टार्टेड दैट भूमि कैन नॉट फुल्ली पार्टिसिपेट, राइट। तो मैंने उसको फोन रखने से पहले बोला टेंशन मत ले यार, जो होगा अच्छा ही होगा, उसमें कोई दो राहें नहीं है। तो उसने कहा हाँ मुझे पता है, मुझे उस चीज की टेंशन नहीं है, बट
कहीं ना कहीं हमें मन में लगता है कि ठीक है, अगर हम होस्ट कर रहे हैं, हमारी भी कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई हमें अपना 1 घंटा पूरा दे रहा है दिन में, बहुत बड़ी बात है। वो 1 घंटे में आप कुछ भी कर सकते हो, पर आप यहाँ पे हो, आप सब यहाँ पे हो, हम यहाँ पे है, हमने वो एक सेफ स्पेस क्रिएट की है एक दूसरे के लिए। तो यस, भले हम बोलते हैं हाँ कोई टेंशन की बात नहीं है, कहीं ना कहीं आई एम श्योर उसको भी ऐसा लग रहा होगा कि आई होप थिंग्स गो वेल। तो वैसा तो मैंने बोला टेंशन नहीं ले यार, जो होगा अच्छा होगा। उसको मैं आई कीप टेलिंग रिपीटिंग इट्स जस्ट अ बुक रीडिंग, हम सब साथ में है, एक दूसरे के लिए है। तो शी इज लाइक यस, वही उस चीज की बहुत खुशी होती है मुझे कि हम सब साथ में है। So, love becomes the courage, love becomes that courage, and that courage is कि आपको याद करना है कि आपने क्या क्या लाइफ में ओवरकम किया है। जब आप याद करोगे ना, मैंने इतनी सारी चीजें देखी है लाइफ में, अब ये तो कुछ नहीं है, ये तो मेरे से आसानी से हो जाएगा। सो वो लव कब आएगा? जब आप ग्रैटिट्यूड दोगे, जब आप शुक्राना दोगे आपके पास्ट को, कि पहले मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम्स ओवरकम किए, आगे भी जो भी होगा देख लेंगे। सो ग्रैटिट्यूड इज द ब्रिज from negative feelings to harnessing the force of love. To use the power of gratitude, practice it. राइट जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, उतना वो और फ्लो होगा हमारी लाइफ में। वेन एनीथिंग गुड हैपन्स टू यू इन योर डे, गिव थैंक्स। इवन वेन वी डोंट हैव टाइम टू राइट, डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी कि आप मेंटली भी थैंक्स करो। ठीक है, आज मेरे पास भी टाइम नहीं है कि मैं लिखूं, आई विश मैं लिखूं, आई होप मैं लिखूं, थैंक यू मैं कि आज लिखूंगी, थैंक यू लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आज मैं ग्रैटिट्यूड लिखूंगी। ठीक है, बट वाइल वी आर इवन थिंकिंग अबाउट इट, मेंटली भी अगर आप कोई काम में हो, कोई चीज याद आ गई, आपके पास बुक पेन नहीं है, मेंटली भी थैंक्स दे दो जो अच्छी चीज हुई। वेन एनीथिंग गुड हैपन्स टू यू इन योर डे, गिव थैंक्स। इट डजेंट मैटर हाउ स्मॉल दैट थैंक यू इज, राइट? छोटी चीज के लिए थैंक यू। द मोर यू फील ग्रैटिट्यूड, द मोर लव यू गिव। तो बता रहे ग्रैटिट्यूड इज लव। जितना आप प्यार दोगे उतना आप रिसीव करोगे। रिसीविंग के लिए भी तैयार रहो, अपने मन को खुला रखो, प्यार के लिए, रिसीविंग के लिए तैयार रहो। पूरी यूनिवर्स आपको देने के लिए तैयार है, वो भी भरपूर क्वांटिटी में। immeasurable amount of things are waiting for you out there. Keep your heart open, keep yourself ready, you will receive more. Every spare second is an opportunity to be grateful and multiply the things you love. दिन में 24 घंटे है, 24 घंटे हम जागते तो नहीं है, पर दिन में कितने सारे मिनट्स है, कितने सारे घंटे हैं, कितने सारे सेकंड है। हर फ्री सेकंड एक अपॉर्चुनिटी है। आप कितने लकी हो, आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है। हर फ्री सेकंड एक अपॉर्चुनिटी है जिससे आप ग्रैटिट्यूड दे सकते हो, और जितना आप ग्रैटिट्यूड देंगे, जैसे हमने सीखा कि वो एक मल्टीप्लायर है, और आपका प्यार, आपका शुक्राना मल्टीप्लाई होगा और अबंडेंस में आपको ही आके मिलेगा। यस कुणाल, थैंक यू। लास्ट पार्ट ऑफ द समरी, द की ऑफ प्ले। The key of play. When you play and feel really good, and really good circumstances come into your life, seriousness brings serious circumstances. I'll repeat it. When you play, you feel really good, and really good circumstances come into your life. Seriousness brings serious circumstances. Life is supposed to be fun. The law of attraction doesn't know if you are imagining and playing. So, whatever you give in imagination and play will become real. Whatever it is you want, use your imagination. Use every prop you can find. Create games and play. Act as if you have it now. Whatever you imagine with feelings, you are giving to the law of attraction, and you must receive it. If you experience a delay in receiving what you want, it's only because of the time it takes you to get onto the same frequency as you desire. When you are excited about anything and you feel amazing, capture that energy and imagine your dream. थैंक यू कुणाल।
can scroll back to the start. Yeah, that's it. Lovely. So life is supposed to be fun, है ना? जितना हम फील गुड करेंगे उतनी अच्छी सर्कमस्टेंसेस आएंगे, जितना हम सीरियस, बोरिंग और ब्रूडिंग रहेंगे वैसी ही लाइफ आएगी, करेक्ट? आई रिमेम्बर कि देखो अभी बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव टू ब्यूटीफुल बॉयज जो अभी छोटी छोटी एज के हैं, टॉडलर से लेके चिल्ड्रन के। तो बच्चे खेलते रहते हैं, मैं उनको देखती हूँ, प्रिटेंड प्ले हम उनके साथ खेलते हैं। तो आई हैव बीन ब्लेस्ड कि आई हैव दैट अपॉर्चुनिटी कि ओके आई हैव किड्स। तो आई स्टिल हैव दोज मोमेंट्स जहाँ पे मैं प्लेफुलनेस और वो हैप्पी मोमेंट्स फील करती हूँ थ्रू किड्स अबाउट प्ले। बट जैसे हमने ये प्ले के पार्ट में स्टार्टिंग में देखा कि जब हम बच्चे थे हम कितनी गेम्स खेलते थे, कितना एंजॉय करते थे, कितना दौड़ते थे, कूदते थे, तब ना कमर में दर्द था, ना हमारे पास थकान थी, एंडलेस एनर्जी होती थी, राइट? उसकी फीलिंग ही अलग है। आज भी याद करते तो मजा आता है सोच के कि अरे वाह क्या हम इंजॉय किया है, क्या दौड़े हैं, कितने हमारे दोस्त थे, सब कुछ ग्रेटफुल फॉर ऑल दोज थिंग्स, राइट? तो बचपन में हम ये सब करते थे, बड़े होके ऑब्वियसली लाइफ चेंज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, इमोशंस हम अलग वे में एक्सप्रेस करते हैं, काफी चीजें हम कैरी करते हैं। बच्चों का माइंड एकदम मस्त होता है, फ्लैश मेमोरी की तरह, गिरे, लगा, रोए, खत्म बात, आगे चलते बनो, राइट? और पर हम बड़े लोग तो सब लेके चलते हैं अपना अपना भोजा। तो वो वही बोल रहे हैं, जितना आप लाइफ सीरियसली लोगे उतनी लाइफ सीरियस बनेगी, जितना आप कैजुअली लोगे, एंजॉय करोगे, खुश रहोगे, वही चीज हम अट्रैक्ट करेंगे। सो वन थिंग आई एम ग्रेटफुल फॉर कि कुणाल एंड भूमि दे डोंट हैव किड्स बट दे लव प्लेइंग गेम्स। दैट इज वन थिंग जो मैंने उन मतलब मैं आफ्टर वेद वॉज बॉर्न आई यूज टू गो टू बॉम्बे, मेरा मायका। तो मेरे भाई और भाभी गेम्स के साथ रेडी होते थे, उनके पास इतनी सारी गेम्स होती थी। दे लव्ड जो वो हाउस पार्टीज गेम्स वाली होती है, आई थिंक उन लोग को होस्ट करनी चाहिए। वो मैग्नेट्स वाली भी जब चैप्टर पढ़ रहे थे मैग्नेटिक के लिए, तो मैग्नेट्स भी जब भी हम बात कर रहे थे मुझे कुणाल और भावना की वो गेम एक मैग्नेट वाली याद आती थी, कैसे एक सर्कल में मैग्नेट। पॉइंट बीइंग कि उनके पास बहुत सारी गेम्स होती थी, पजल्स क्या क्या नहीं होते थे। तो मुझे बहुत खुशी होती थी देख के, यार ये लोग बच्चे नहीं है पर हमारे अंदर, सबके अंदर एक बच्चा है। वो बच्चे को खुश रखना, वो बचपना अपने में रखना इज बाय प्लेइंग गेम्स। एंड दिस इज अ स्टार्ट, वंस यू स्टार्ट प्लेइंग गेम्स। अब दूसरी गेम बच्चे क्या खेलते हैं? प्रिटेंड प्ले, इमेजिनेशन वाली, आपकी इमेजिनेशन बूस्ट होगी। सो मेरी मम्मी मतलब मेरे मदर इन लॉ, उस दिन हम बात कर रहे थे कि वो लोग है ना बहुत योगा में और योग निद्रा और सब कुछ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं अपनी लाइफ में। उन्होंने 1990 से योगा चालू किया है, तब से लेके उन्होंने योगा के काफी शिविर किए हैं कि जो चीज़ से हमें फायदा हुआ है सबको फायदा हो वैसा। तो उनको बहुत योगा मेडिटेशन का है, तो वो एक मेडिटेशन कर रहे थे, बता रहे थे कि उसमें ना उस मेडिटेशन में जब ये लोग जोन में है, आइज बंद है, आप लेटे हुए हो शवासन टाइप में, वो एक ऑडियो प्ले करते हैं। तो उसमें वो बता रहे थे कि चलता हुआ कुत्ता, बैठी हुई डक, उड़ता हुआ पक्षी, तो ये आपको आइज क्लोज करके इमेजिन करना है। और वो बहुत स्पीड में जाते हैं। तो मैं बोल रही थी मम्मी को कि ये कितनी अच्छी चीज है कि जो हमारे इमेजिनेशन बंद हो गई है बड़ों के लिए। अगर आप मेडिटेशन में भी ये इमेजिन करते रहते हो, दौड़ता हुआ घोड़ा, खुला आसमान, बादल, तो आप जब ये सुनोगे ना आइज क्लोज करके, आप इमेजिन करना चालू करोगे, यू आर रीस्टार्टिंग योर इमेजिनेशन। हम हमारी इमेजिनेशन भूल जाते हैं, कि हम भूल जाते हैं कि हमारे पास वो पावर है बड़े होने के बाद। वेरी ब्यूटीफुल वे। मैंने मम्मी को बोला दैट समथिंग वेरी गुड यू आर डूइंग। इससे आपके ब्रेन सेल्स वो एक्टिवेट हो जाएंगे इमेजिनेशन के। एंड हम भी वो कर सकते हैं कि जब हम इमेजिनेशन ट्राई करेंगे, इमेजिन करना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तो नहीं पता क्या सच है क्या नहीं है, तो आपको वो चीज मिलेगी। दिस इज एग्जैक्टली वॉट वी आर लर्निंग। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन डजेंट नो इफ यू आर इमेजिनिंग एंड प्लेइंग। सो वॉट एवर यू इमेजिन एंड प्ले will become real. That's the third point which we learned. Whatever it is you want, use your imagination, use every prop you can find, create games and play. जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया फोटोज की तरह कि आप जो चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अभी आप कभी एक अच्छी मूवी देखते हो, उसमें हीरो का या हीरोइन का एक बड़ा सा आलीशान घर है,
तो जब हम देखते हैं तो हम इमेजिन करते हैं ना कि ऐसे एक घर में अगर मैं भी रह रहा हूँ, अगर आपने देखा तो आप इमेजिन कर पाए कि हाँ ऐसे एक घर में मैं भी रह रहा हूँ तो मजा आ जाएगा, नहीं? तो सेम वे, क्यों इमेजिन कर पाए? क्योंकि हमने वो दृश्य देखा। तो वो वही बोल रहे हैं, यूज एवरी प्रॉप यू कैन फाइंड, क्रिएट गेम्स एंड प्ले। जैसे हमने वो साइकिलिस्ट का एग्जाम्पल देखा, वो बेचारा बीमार था, हॉस्पिटल में था, उसने उसको भी अपॉर्चुनिटी की तरह यूज की, डॉक्टर्स को, नर्सिस को चेक पॉइंट्स बनाया, इमेजिन किया कि मैं साइकिल पे यहाँ यहाँ पहुंच रहा हूँ, मेरा टाइम बढ़ रहा है। 1 साल के बाद उसने वो जीत लिया कंपटीशन, और ना ही एक बार जीता, 7 बार लगातार जीता हर साल। तो वही बोल रहे कि यूज एवरी प्रॉप यू कैन एंड यूज इट। एंड इमेजेस इज अ वेरी पावरफुल टूल। जितना हम इमेजेस बनाएंगे, अपने दृश्य बना के रखेंगे जो चाहिए, और आज तो कितनी हमारे पास सुविधा है, ऑनलाइन जाओ, जो चाहिए गूगल करो, मिल जाता है, एंड यू कैन कीप इट एज अ प्रॉप। If you experience a delay in receiving what you want, it is because of the time it takes you to get onto the same feeling frequency as you desire. जो हमें चाहिए ना, वो एक ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी पे है। अगर हमें लग रहा है हमें वो चीज नहीं मिल रही है, बिकॉज आप वो फीलिंग को वो फ्रीक्वेंसी तक नहीं लेकर गए। और कैसे लेके जाएंगे हम? विथ लव। ओनली वे टू रीच, कि लव दो कि जैसे आपको वो चीज ऑलरेडी मिल गई है। When you are excited about anything and you feel amazing, capture that energy and imagine your dream. जो हमने आज पढ़ा था, राइट, लास्ट पार्ट में, कि जब आप खुश हो, बहुत खुश हो कोई भी चीज से, किसी में भी आपके बच्चे ने आपको स्कूल से आके हग किया, एंड यू आर वेरी हैप्पी, योर हार्ट इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, वो हैप्पीनेस मोमेंट में फटाफट अपना ड्रीम इमेजिन कर लो, जो आपको चाहिए इमेजिन कर लो, आपने वो एनर्जी कैप्चर कर ली। तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी वो बोलते ना, एक बूस्ट की तरह मिल जाएगा कि अच्छा ये इसे चाहिए, उसे देंगे। सो दैट कम्स टू एंड ऑफ की ऑफ प्ले बाय मी, बट अभी भूमि के पॉइंट्स बाकी है, तो लास्ट 2 मिनट्स फॉर दैट। Okay. So yes, which something Bhumi explained it to me on call also, कि द की ऑफ प्ले, कि लाइफ में बड़ा आसान है कि हम एक कमेंटेटर बन के या एक स्पेक्टेटर बन के देखें गेम को बाहर से। कि आप एक क्रिकेट की मैच देखने गए हो, आप बाहर से बैठ के बोलना बड़ा अच्छा है, अरे सचिन स्क्वायर कट मार यार, सचिन फ्रंट फुट पे आके खेल, बड़ा आसान है, राइट? हमें हमारी गेम में उतरना है, ये हमारी गेम है। बी द प्लेयर, don't be a spectator, don't be a commentator. That is what Bhavdu wants us to learn today, right? जब हम कमेंटेटर है तो हम जज कर रहे हैं, या हम अपनी लाइफ को नरेट कर रहे हैं, हम उसे फील नहीं कर रहे हैं, हम उसमें आके उतर नहीं रहे हैं। जब हम प्लेयर बनते हैं ना, वी आर विलिंग टू लूज, वी आर विलिंग टू विन, वी आर विलिंग टू लर्न। हम हार के भी जीतते हैं, हम फेलियर से भी जीतते हैं, राइट? वी आर विलिंग टू लुक फुलिश। वी अगर जब हम ओपन होते हैं टू फील दैट, वी डेफिनेटली लर्न फ्रॉम दैट। वी हैव टू बी द प्लेयर। व्हेन यू लव द गेम, आउटकम मैटर्स लेस। जब आपको गेम पसंद हो ना, गेम खेलना पसंद हो, तो क्या आउटपुट है, जीतते हारते हो फर्क नहीं पड़ता है, यू एंजॉय प्लेइंग। दिस इज समथिंग आई हैव लर्नड इन अहमदाबाद। मैं शादी करके आई यहाँ पे, तो यहाँ पे काफी बार ये लोग स्पोर्ट्स क्लब और ये सब क्लब्स होते हैं, तो यहाँ पे बहुत क्रिकेट खेलते हैं। तो मैंने एक बार खेलना चालू किया, मतलब मजा ही आ गया। जो यू आर पार्ट ऑफ दैट टीम, जो वो फीलिंग होती है, भले आप कितना भी खेलो, 4 बॉल ही फेस करो, उसका मजा ही अलग है। टू बी द प्लेयर, जो प्लेयर होने का मजा है ना, वो और कोई चीज में नहीं है। हारो या जीतो, डजेंट मैटर। इट्स गुड टू बी पार्ट, to take action, to take ownership. It is definitely powerful. Now, the invitation. So, the journey itself becomes the reward. Move beyond mera kya hoga. Instead, ask, what is the biggest game life is inviting me to play? ऐसी कौन सी बड़ी गेम है जो लाइफ मुझे बुला रही है? चल कंचू आजा, आज खेलते हैं। खेलो। प्ले बिगर, लव डीपर एंड ट्रस्ट मोर। ये भावना के आखिरी 3 शब्द आज के दिन के लिए। बाकी मंडे का ज्ञान भावना जी देंगे, भूमि जी देंगे। सो दिस कम्स टू एन एंड ऑफ आवर ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल चैप्टर, एंड मंडे वी शैल स्टार्ट विथ
the money, the power. Looking forward to that. And hoping this chapter Bhavdu takes, because she has something to address with money, which she has already explained to all of us. So let's see what goes there. So thank you everyone to be this one beautiful hour. आप सब मेरे साथ थे, बहुत अच्छा लगा. Thank you Kunal. आज finally you decided become a player. तूने participate किया as a reader. Thank you so much. Thank you Drishti. बीच बीच में I could see your emoticons flying. Yes, thank you. And yes, Kunal, go ahead. Uh, so I would like to add a little bit. जैसे कंचू ने बोला गेम्स के बारे में, आई थिंक सो इट्स हम गेम्स तो बहुत खेलते हैं, बट हम हमेशा वही चीज में रहते हैं कि हम बस जीते, गेम को बस हमें जीतना है बहुत बार. मेरे लाइफ में मैंने कुछ चीजें ऐसी देखी, जो हम लोग स्कूल में तो हम बोलते हैं बहुत कंपटीशन रहता है, तो हमेशा बहुत बार देखा रहेगा कि फर्स्ट आए सेकंड आए, एक 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 कॉम्पिटिटिवनेस रहता है, और एक समवेयर एक कंपटीशन को इतना हम लोग इतना फ्रेंडलीनेस से नहीं ट्रीट करते हैं. जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, सो वन फाइन डे आई हैड गॉन टू हाई कोर्ट, कोई बिजनेस रिलेटेड सिचुएशन. तो हमारे सामने हमारे कॉम्पिटिटर्स आप बोल सकते हो या ऑपोजिंग बोल सकते हो. तो मैं किसी से मिला वहां पे, एंड आई सॉ माय अंकल बीइंग सो मीटिंग सो वार्मली, अच्छे से मिले, ये मिले, तो मुझे लगा कि वो हमारे ही काइंड ऑफ इसके हैं. बाद में मेरे को जाने के बाद पता चला ये तो हमारे अपोजिंग वाले. तो वन थिंग आई लर्न अबाउट दैट वेरी ब्यूटिफुली वाज कि हम चीज को कितना सीरियसली लेते हैं. देखो सिचुएशन तो बदलने नहीं वाली है, जो होना है वो होगा ही लाइफ में. बट एट द सेम टाइम हाउ वी ट्रीट इट, हाउ वी टेक इट, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप हल्के में लो लाइफ को, बट एट द सेम टाइम आप जब अपने आप को लाइट कर लेते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही चेंज हो जाता है, विच पुट्स यू ऑन अ विनिंग पोजिशन अ लॉट ऑफ टाइम्स. तो हम कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, हम किसी को किस फीलिंग से हम ग्रीट कर रहे हैं, हम किस फीलिंग से ट्रीट कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपकी शायद आप शायद जीतो भी नहीं, बट आप अपने लिए जीत चुके रहते हो अंदर, बिकॉज आपने उस चीज को अपने आप को अफेक्ट करने नहीं दिया है. एंड दिस आई यू वोंट बिलीव कि ये हमारे जो भी अपोजिंग है कोई भी थे एट द टाइम, हम उनको हर जगह इनवाइट भी करते थे. हमारे कोई ग्रेट इवेंट्स भी रहते थे, हम कोई लॉन्चेस भी करते थे, हम उनको इनवाइट भी करते थे. सो मैं ये चीज लाना चाहूंगा कि मैंने भी अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें सीरियसली ली है, बट एट द सेम टाइम मैंने रियलाइज किया है कि वो सीरियसनेस से तो मेरे सर्कमस्टेंसेस तो चेंज नहीं होने वाले, मेरे एक्शंस ही मेरे पे ही अफेक्ट कर रहे हैं. आई एम द वन हु इज सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग स्ट्रेस लेके, हमें तो हमारे सर्कमस्टेंसेस चेंज नहीं हो जाएंगे. सो बाय प्लेफुलनेस व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम हियर, कि आप अपनी लाइफ को, हर चीज को भले ही शिद्दत, आप शिद्दत से लो, बट उस तरीके का स्ट्रेस एंड सीरियसनेस अपनी लाइफ में इन्फ्लिक्ट मत करो. वो आप ही को ही डैमेज कर रहा है, सामने वाले को या किसी को भी कुछ नहीं हो रहा है. आप खुद ही अपने आप के विनर हो एंड ऑफ द डे. सो या थैंक यू सो मच कुणाल. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल शेयर डेफिनेटली. सो जो तूने बात बोली वही टू रीइटरेट दैट, कि जब हम कोई चीज़ बहुत सीरियसली लेते हैं ना, तो आप इमेजिन करो आप एक बोट में हो, पानी में हो, और आप सारा पानी लेके अंदर डालते जा रहे हो. ये वैसी बात हो गई कि हम अपने आप को ही हैवी कर रहे, खुद को ही डुबा रहे हैं. जैसे उन्होंने बोला, लाइफ इज सपोज टू बी फन, इंजॉय लाइफ. ये एक ही जीवन मिला है, एंड इसमें से हम बाहर जिंदा तो नहीं निकलने वाले, जो है यहीं पे है. तो make most of it by being and giving love to everyone, by giving gratitude for every little thing you have. And the more we are going to feel this, हमारा ब्रेन उस चीज के लिए वायर हो जाएगा, फिर हमारे नेचुरली भी वही चीजें निकलेगी. वी विल फील लाइट, वी विल फील हैप्पियर, एंड वी विल यूज दीज थिंग्स. एक बोलते ना, हमने ये चीज सीख ली, ये प्रॉप्स यूज करना सीखा, ग्रेटिट्यूड यूज करना सीखा, गेम्स यूज करना सीखा, ये हमारे टूल्स है. बट किस चीज के लिए है? टू रिक्लेम दैट पावर
जो पावर हमारे अंदर है, जो सारा हमारा पास्ट भी है, जो प्रेजेंट भी है, जो फ्यूचर भी है, हम ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो हमारे ही अंदर है। तो अगर हम ही अट्रैक्ट कर रहे हैं तो फिर हम वो चीजें अट्रैक्ट करें ना जो हमें चाहिए, राइट? सो थैंक यू सो मच। 10:31 हो गए हैं। किसी और को अगर कोई चीज शेयर करनी है तो वी कैन टेक दैट, एंड इफ एनीवन वांट्स टू लीव दे आर कंप्लीटली ओपन एंड फ्री फॉर दैट। कुणाल ने बहुत अच्छा समझाया कि जो चाहिए था ना वही दिया। थैंक यू कुणाल। Yes, Kunal, I think we are good to go. Everybody have a great weekend. Thank you so much. Thank you. Let's enjoy the song.